آج ویو 360 میں امریکہ میں نسلی تناؤ پر بحث، نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کا ایک اہم موضوع، سوشل میڈیا کی طاقت ووٹرز کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور آپ کو ملوائیں گے انٹرنیٹ ڈیڈ سے جن کے پاس آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں نسلی مساوات کی مہم سرخیوں میں ہے۔ سیاہ فاموں کے لیے نسل کی بنیاد پر انصاف کا مطالبہ زوروں پر ہے۔ مظاہروں کے خلاف جوابی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور 2 مختلف شہروں میں مظاہرین پر گولی چلنے کے واقعات نے تناؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ نسلی تعلقات پر بحث نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کا ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن صدر ٹرمپ پر تشدد کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کر رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ سختی سے لا اینڈ آرڈر کا پیغام دے رہے ہیں۔ دونوں امیدواروں کے درمیان نسلی تناؤ کے موضوع پر جاری اختلافات کے بارے میں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں سوشل میڈیا کے کردار پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے ذریعے ووٹروں کی رائے کو متاثر کرنے کی کوششوں پر تحقیقات بھی ہوئیں۔ کیا 2020 میں صورتحال مختلف ہوگی؟ سوشل میڈیا کی کمپنیاں غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئی پالیسیوں پر عمل تو کر رہی ہیں، مگر سب سے بڑے اور نامور پلیٹ فارم فیس بک پر اس حوالے سے تنقید بھی کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی نوعیت کے مواد اور خصوصاً سیاستدانوں کی پوسٹ پر مناسب چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا۔ نخبت ملک نے ٹیکنالوجی ماہرین سے جاننے کی کوشش کی کہ سوشل میڈیا کی طاقت 2020 کے انتخابات میں امریکی ووٹرز کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آج امریکہ میں ہر 10 میں سے 7 لوگ رابطے، تفریح اور معلومات کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والے ادارے پیو ریسرچ کی۔ 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روس نے امریکی ووٹرز کی رائے متاثر کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کیا اور کروڑوں صارفین کو غلط معلومات کا نشانہ بنایا۔ پچھلے پریزیڈنشل الیکشن میں 2016 میں جس طرح سے روسی اور اینٹیٹیز نے، تنظیموں نے اور لوگوں نے اپنی انوالومنٹ رکھی، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیاست کے ہر شعبے میں، ہر ایسپیکٹ میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کس کے ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو سوشل میڈیا کے ذریعے متاثر کرنے کا خطرہ اب بھی ٹلا نہیں ہے۔ The world, including the world of bad actors, domestically and in foreign nations. لوگ جو امریکہ میں ہو یا دوسرے ملکوں میں، ہم سب کو ہمارے میڈیا ایکو سسٹم میں وہ بہت بڑا موقع نظر آ چکا ہے جس سے امریکہ میں سیاسی انتشار پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت واضح ہو چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹیک کمپنیز نے اس سلسلے میں کافی کچھ کیا ہے۔ United States. I'm not sure that the tech companies have done quite enough. سوشل میڈیا ہمیں بڑی حد تک وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والے الگورتھم صارف کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لے کر اس کی پسند کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی کانٹینٹ پیش کرتے ہیں تاکہ صارف کی دلچسپی بنی رہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کمپنیز کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے، نہ کہ صارفین کا ذہن بنانا۔ It's a complex question, no doubt. Who controls the news feed? بے شک یہ ایک پیچیدہ سوال ہے کہ فیس بک یا ٹویٹر کی نیوز فیڈ کون کنٹرول کرتا ہے، یا یوٹیوب پر مواد کی تجاویز کے الگورتھم کا اختیار کس کے پاس ہے۔ لیکن اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ مارک زکربرگ نہیں جن کے پاس یہ کنٹرول ہے۔ ہاں، وہ اپنی کمپنی کی پالیسیز تشکیل دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات بناتے ہیں، لیکن ان سب ترجیحات کا مقصد منافع کو ہی بڑھانا ہے۔ اور جب آپ اسی لینس سے اس ساری تصویر کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھی ایسی دوسری بڑی امریکن کمپنی سے مختلف نہیں ہے جو امریکی معیشت کے لیے منافع بخش ہے۔ About this industry through that lens, and it's no different from any other industry that's trying to maximize profit in the American economy, of course. غلط معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ٹویٹر اور فیس بک نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلیاں کی ہیں جن کے نتیجے میں ایسی پوسٹس پر وارننگ آ جاتی ہے جن میں غلط معلومات کا خدشہ ہو۔ مگر الیکشنز کے سال میں جب امریکہ کو ایک عالمی وبا کا سامنا بھی ہے، سیاسی جماعتیں جلسوں کی کمی کو سوشل میڈیا کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ان پلیٹ فارمز کی طاقت کی ایک اور علامت بھی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تگڑا اثر الیکشن اور چناؤ پہ اور پھر سیاست پہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی تو پھر بھی کچھ کیمپینز کر رہی ہے، کچھ ریلیز کر رہی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی تو ایک دم ہی آن لائن چل رہی، تو اس کی وجہ سے اس کا جو رول ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔
टेक कंपनीज के बढ़ते हुए असर रसूख के बारे में अमरीकी सियासतदान भी फिक्रमंद नजर आते हैं। एक माह पहले अमरीका की 5 बड़ी टेक कंपनीज एप्पल, गूगल, ट्विटर, अमेजॉन और फेसबुक को पहली बार कांग्रेस में एक समाअत के लिए तलब किया गया। इस मौके पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान ने इन कंपनीज के कारोबार की दुनिया और लोगों की जाती मालूमात पर बढ़ते हुए कंट्रोल के बारे में पूछताछ की। मैं तो ये कहूँगा इनके पास जो है वो एक नहीं 2 तरह की पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि एक जो हमारे रवायती तौर पे बिग बिजनेस मतलब मंडी जिसको कहते हैं, बाजार या मंडी की जो ताकतें होती हैं, उनके पास वैसे ही बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो पैसे डाल सकते हैं सियासत में और वो सारी चीजें कर सकते हैं। टेक को वैसे ही ज्यादा पूछगछ टेक की मुआशरे में अभी तक ढंग से नहीं हुई थी, अब होना शुरू हो रही है। खासतौर पे 2016 के इलेक्शन के बाद उस वजह से भी इनकी ताकत ज्यादा थी, बल्कि अब थोड़ा सा उस पर कदगन थोड़ी लग रही है, थोड़ा सा उनको काबू में लाया जा रहा है। टेक की दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम होने का इम्कान तो नहीं है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल बेहतर पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी की मदद से जरूर कम किया जा सकता है, मगर ये रातों रात नहीं होगा और तब तक इलेक्शन जैसे अहम मौके पर दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर वोट का फैसला करने की जिम्मेदारी बड़ी हद तक सार्फिन पर ही होगी। फेसबुक अब एक ऐसी रिसर्च करवा रही है जिसका मकसद ये जांचना है कि 2020 के सदारती इंतखाबात पर इस प्लेटफॉर्म का क्या असर हो सकता है। फेसबुक का कहना है कि इस रिसर्च के नताइज 2021 के वस्त तक सामने आएंगे। अमरीकी इंतखाबात और इसके अलावा पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में नस्ली मसावात के लिए जारी मुजाहिरों में ऐसे कई मुजस्मे गिराए भी गए जो उन अफराद को खराज तहसीन पेश करते थे जिन्होंने 1860 की दिहाई में होने वाली खाना जंगी के दौरान जनूबी रियासतों का साथ दिया था। मुजस्मे गिराने वाले कहते हैं कि ये गुलामी की हिमायत करने वालों की यादगारें हैं, जबकि मुजस्मों के हामी इसे उसूलों की खातिर होने वाली जदोजहद की निशानी करार देते हैं। लेकिन मुजस्मे हटाने की राह में एक और रुकावट भी है, और वो ये है कि जिन अफराद ने मुजस्मों के लिए ये ज़मीन अतिया की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके वरसा चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पर वही किया जाए जिसका वादा उनके बुजुर्गों से किया गया था। रिचमंड में मॉन्यूमेंट एवेन्यू के मकाम पर कन्फेडरेट आर्मी के कमांडर रॉबर्ट ली को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कभी ये मुजस्मा नस्ब किया गया था, जिन्होंने अमरीकी खाना जंगी के दौरान गुलामी बरकरार रखने के लिए जंग लड़ी थी। जहां इनका मुजस्मा नस्ब है, वहां अब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के मुजाहिरीन की छोड़ी गई निशानियां भी मौजूद हैं। वहां आने वाले सयाहों के इस मुजस्मे के बारे में मिले जुले तासुरात हैं। I think the monuments are like a stain on the city. मेरी राय में ये यादगारें शहर पर धब्बा हैं, जिन्हें जिम क्रो के दौर में स्याफामों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए नस्ब किया गया था, और ये हमारे शहर की अक़दार और इसकी मिरास की खौफनाक नुमाइंदगी है। ये हमें मुसलसल याद दहानी कराते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद पर क्या गुजरी। मेरे ख्याल से अब तक हमें इस बहस से बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। इस सड़क के किनारे मौजूद अलहदगी पसंद दौर की दीगर यादगारें हटा दी गईं। मुजाहरों की लहर के बाद मकामी ओहदेदारों ने इन्हें हटा दिया था, लेकिन रियासत के गवर्नर के हुक्म के बावजूद रॉबर्ट ली के मुजस्मे को हटाने में रुकावटें हायल हैं। जहां ये मुजस्मा नस्ब है, वो जमीन सन 1890 में इस मकसद के लिए रियासत को अतिया की गई, और अब अतिया करने वाली शख्सियत के वरसा में से एक का कहना है कि ये उनके परदादा के जज्बात के मुनाफी इकदाम है। इस जमीन के अतिया दहिंदा के वारिस ने एक हुक्म इम्तनाई दाखिल किया है जो गवर्नर को मुजस्मे को हटाने से रोकता है। उनका कहना है कि ये इक़दाम बाइस तकलीफ होगा और मुजस्मे को हटाना सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि शहर और कम्युनिटी के लिए भी नुकसानदेह है। उन्हें चाहिए कि वो हमें माजी की नाइंसाफियों को याद रखने की इजाजत दें और तारीख को मिटाने के बजाय इसे याद रखने दें। मुझे ये देखकर दुख होता है कि लोगों में इतना गुस्सा है कि वो इन्हें इस तरह तबाह कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर टेट का ख्याल है कि जमीन वापस किए बगैर मर चुके अतिया दहिंदगान की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करने की कानूनी दलील मौजूद है। पहले ये देखना है कि ये किस तरह का अतिया था, क्या ये तोहफा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था या लेन देन था। ये मुजस्समा फंड्स इकट्ठे करने वाली खवातीन की एक तंजीम की जानिब से तोहफा था, और ये जमीन जहाँ ये नस्ब है शहर के गवर्नर को तोहफे के तौर पर दी गई थी।
और बास उमूर का ख्याल करते हुए उन्हें इसे हटाने का हक हासिल है। अदालत ये फैसला दे सकती है कि अराजी अतिया दहिंदगान की औलाद को वापस कर देनी चाहिए। इस सूरत हाल में प्रोफेसर टेट का ये निजी अमलाक को इस्तेमाल करने की शिक को सामने रखकर जमीन पास रखी जा सकती है और वरसा को माली मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन मुजस्समों का क्या बनेगा? अगर आप भी मेरी तरह तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो यही सोचते होंगे कि मुजस्समों को कायम रहना चाहिए, क्योंकि माजी तो सबका होता है। एक बड़ा कन्फेडरेट म्यूजियम तो मसला नहीं है, हर कोई वहां जा सकता है, मैं भी, क्योंकि ये तारीख है। क्या रिचमंड मॉन्यूमेंट एवेन्यू पर मौजूद ली का मुजस्समा तारीख का हिस्सा बन जाएगा? ये वक्त ही बताएगा। डोरा मैकवार के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में चाइल्ड लेबर बढ़ सकती है। दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाना मना है। इसके बावजूद एशिया और अफ्रीका में बच्चों की बड़ी तादाद से कम उजरत पर बहुत सख्त मेहनत करवाई जाती है। अगस्त में सब मुल्कों ने मिलकर बच्चों को चाइल्ड लेबर की बदतरीन अशकाल से बचाने की करारदाद की हिमायत की। आइए आपको ले चलते हैं अफ्रीकी मुल्क घाना, जहां आज भी बच्चे खतरनाक शोबों में काम कर रहे हैं, मगर एक तंजीम उन्हें वहां से निकाल कर स्कूल में भेजने में मसरूफ है। जब स्टीफन ओरो वोल्टा झील पर जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को बचाने की मिशन पर निकलते हैं तो उन्हें अपना बचपन याद आता है, जब उन्हें घाना की माहीगीरी की सनत में मजदूरी पर मजबूर किया जाता था। औरों का कहना है कि स्मगलर्स वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के झूठे वादों के जरिए धोखा देते हैं और फिर उन्हें मछलियां पकड़ने पर मजबूर करते हैं। इनमें से कुछ की उम्रें 5 साल तक होती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अरकान ममालिक ने अगस्त के अवाइल में चाइल्ड लेबर की बदतरीन इकसाम की तौसीक की, लेकिन औरों का कहना है कि इस मसले को रोकने के लिए मजीद सियासी अज़्म की जरूरत है। लेकिन हमें फिर भी उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने का तरीका तलाश करना चाहिए कि दफ्तर में बैठकर सिर्फ इसकी तौसीक न करें, बल्कि जमीनी हकायक जानने के लिए यहाँ आएं और उन लोगों के साथ काम करें जो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि हम जैसे चाहते हैं वैसा ही हो। घाना और पड़ोसी मुल्क आइवरी कोस्ट में भी कोको की सनत में बच्चों से जबरी मजदूरी कराने का मसला है। बैनुल-अक़वामी कोका इनिशिएटिव नामी तंजीम इस सनत में मजदूर कम्युनिटी के दरमियान आगाही फैलाने, तालीम और जरिया मुआश की मदद से बच्चों की मजदूरी को रोकने के लिए काम करती है। तंजीम के तर्जुमान को उम्मीद है कि चाइल्ड लेबर कन्वेंशन की बदौलत हुकूमतें और निजी शोबों की तरफ से मजीद कार्रवाई का आगाज होगा। अब जबकि हर मुल्क ने इस कन्वेंशन की तौसीक की है, हम सबको अपनी तमाम कम्युनिटीज में जहां कहीं भी हमारे बच्चे हैं, अपनी तमाम सप्लाई चेन्स में बच्चों से मजदूरी कराने के खात्मे के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा, क्योंकि बच्चों का काम ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना नहीं जो मुजरे सेहत हो। हालिया बरसों में घाना ने बच्चों की मजदूरी के मसले से निपटने के लिए नई पॉलिसियां अपनाई हैं, जिनमें कोको के शोबे में काम करने वालों के लिए स्कूलों की तामीर नौ और स्कूल में मुफ्त खुराक मुहैया करना शामिल है। हुकूमत गुर्बत और नाखानगी के मसले को हल करने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रही है, लिहाजा नए स्कूल खोले गए हैं ताकि स्कूल तक का सफर तवील ना हो। घाना की लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि इन काविशों के समरात आने वाले वक्तों में नजर आएंगे, लेकिन औरों जैसे कारकुनों के लिए जो अपना दिन जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को बचाने में सर्फ करते हैं, इस मश्क को खत्म करने में अभी वक्त लगेगा। स्टेसी नॉट के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। 57 लाख आबादी का मुल्क सिंगापुर कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा था, लेकिन साथ ही वहां इस साल अब तक डेंगू के 26,000 केसेस भी सामने आ चुके हैं। सिंगापुर के हुकाम डेंगू के मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए अब मच्छरों से ही मदद ले रहे हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। सिंगापुर की एक रहायशी इमारत के बाहर महकमा माहौलियात के एक ओहदेदार ने एक मर्तबान खोला और लेबोरेटरी में पाले गए 150 नर मच्छरों को फिजा में छोड़ दिया गया। ये ओहदेदार मच्छरों को छोड़ने के लिए 6 नालियों पर मुश्तमिल एक लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं, जिससे गोया मच्छर फिजा में दागे जाते हैं। ये काम रहायशी इलाके में वाक़े कई मंजिला ऊंची इमारतों की राहदारियों से किया जाता है। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये मच्छर मादा मच्छर की तलाश में परवाज करते हैं।
लेकिन इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। पूरे मुल्क की आबादी में रिकॉर्ड सतह पर फैली डेंगू की बीमारी को काबू में लाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए ये मच्छर सिंगापुर का जदीद तरीन हथियार है। मेरे ख्याल में यहाँ हर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में मुतजस्सिस है, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि ये निस्बतन अच्छी चीज है, क्योंकि सिंगापुर में डेंगू की वजह से सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, खासकर गर्मियों में। इस प्रोजेक्ट के सरबराह निंगली चिंग ने बताया कि वो बावचा नामी बैक्टीरिया लिए हुए एडिस इजिप्टी किस्म के ये मच्छर जब फिजा में छोड़े जाते हैं तो ये जंगली मच्छरों के हरीफ बनकर उनकी मादा मच्छरों की तरफ रुजू करते हैं। चूंकि ये एक दूसरे के लिए नामुवाफिक होते हैं, जब मादा मच्छर अंडे देती है तो उनकी अफजाइश नहीं होती, जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी में इजाफा नहीं होता। So the eggs that are laid, मादा मच्छर के अंडे पनप नहीं सकते, इसलिए उनकी अफजाइश नहीं होती। तसव्वुर करें कि अगर हम ये बूल बाचिया नर मच्छर मैदान में छोड़ते हैं तो ये जंगली मच्छरों के मद्दे मुकाबिल मादा के पास जाएंगे, जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी बदरीज कम होती जाएगी। इस अहलकार के मुताबिक मच्छरों की भरमार वाले इलाके में वहाँ इस तरीके के इस्तेमाल से आबादी में 90% कमी देखी गई है। in terms of mosquito population, हमने उन इलाकों में मच्छर कम होते देखे हैं जहाँ वोल बाचिया मच्छरों को छोड़ा गया था। तारीखी एतबार से इन इलाकों में मच्छरों की आबादी की सतह बुलंद थी और आज 1 साल से ऊपर हो गया है हम इस तरह की कम सतह देख रहे हैं, जिसके मानी डेंगू के खतरे में कमी है। ये हिकमत अमली ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाब रही, लेकिन चंद माहिरीन का कहना है कि सिंगापुर जैसे गुंजान आबाद शहरी इलाके में ये शायद एक हद तक ही कारगर हो सकता है। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में मुतादी अमराज के माहिर और सीनियर कंसल्टेंट पॉल कम्बाया ने इसके कारगर होने के बारे में शक का इजहार किया है। Well, I'm a little bit skeptical about it. It worked in Northern Queens. मुझे इस बारे में शक है। हाँ, ये शमाली क्वींसलैंड में कारगर साबित हुआ था, जहाँ गुंजान आबादी नहीं है। लेकिन सिंगापुर जैसे इंतहाई गुंजान आबाद शहर में ये बहुत मुश्किल होगा। वो मच्छर को पकड़कर ये तो नहीं देखेंगे कि क्या ये नर है या मादा, तो वो उसे मार देंगे और यूं एक लिहाज से प्रोजेक्ट का मकसद फौत हो जाता है। सो ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंगापुर में ये कितना मौसर होगा। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। शेव करने का सही तरीका क्या है? कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए टाई कैसे पहनी जाए और गाड़ी का टायर कैसे तब्दील किया जाए? अगर ये काम आपने अपने वालिद से नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, हम आपको मिलवाते हैं इंटरनेट डैड से, एक अमरीकी जिनकी अपनी जिंदगी वालिद के बगैर गुजरी। इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल के 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आइए देखते हैं कि डैड हाउ डू आई में आपके लिए और क्या क्या है। Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around. The air pressure in your tires. अगर कोरोना शटडाउन ना होता तो अमेरिकी रियासत वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाले रॉब केनी शायद अपना एक देरीना ख्वाब पूरा ना कर पाते। वो हमेशा से ऐसे बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते थे जिनके वालिद नहीं हैं। केनी के अपने वालिद उन्हें नौजवानी के दौर में छोड़कर चले गए थे, इसलिए बाप जैसी नसीहतें ऑनलाइन शेयर करना उनके लिए अहम था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका चैनल इतना मशहूर हो जाएगा। Oh my goodness, this is मेरे खुदाया, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मशहूर हो गया। मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत थी। मैंने सोचा था कि कुछ अफराद की ही मदद हो जाए तो काफी होगा, लेकिन जब 1000 लोगों ने इसकी रुकनियत ली तो मैंने सोचा लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अब हमारे 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रॉब की जवानी के दिनों में ना तो इंटरनेट मौजूद था और ना ही उनके वालिद जिनसे वो सवाल करते। 14 बरस के हुए तो उनके वालिद खानदान को छोड़कर चले गए। वालदा की शराब नौशी पर सरकारी इदारों ने उनसे बच्चे लिए तो बड़े बच्चों ने छोटों को पाला। Okay, so today I'm going to show you how to tie a tie. Like tying a tie, I learned how to tie a tie from my roommate when I was 20. 20 साल की उम्र में अपने रूममेट से टाई बांधना सीखी और कुछ दूसरी चीजें भी जो अक्सर वालिद से सीखी जाती हैं। Perfect. Looks good. एक तल्ख बचपन के बावजूद रॉब अपने बच्चों के लिए अच्छे वालिद साबित हुए। यूट्यूब चैनल भी वो अपने बच्चों के लिए ही बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें हजारों अफराद के दर्दनाक पैगामात मिलने लगे। मैं उन्हें इंटरनेट वालिद भाई कहती हूँ क्योंकि हम तकरीबन हम उम्र होंगे। मुझे उनसे बहुत लगाव है। उनकी गर्मजोशी को कैमरे के पार से भी महसूस किया जा सकता है। आप हैरान होंगे कि अब मुझे टाई पहनना और बाथरूम के बंद पाइप खोलना आता है।
I think for me, you know, as a young man when I was 14, it seemed like जब मैं 14 साल का था तो मैं खुद को हालात में फंसा हुआ महसूस करता था, लेकिन फिर जैसे वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, आपको समझ आती है कि बुरा वक्त आर्जी होता है, हालात बेहतर हो जाते हैं, आगे का पता नहीं होता। केनी यकीन दहानी कराते हैं कि कोरोना वबा खत्म होने के बाद भी वो ये प्रोजेक्ट जारी रखेंगे, क्योंकि लाखों अफराद के लिए वो महज छोटे मोटे मशवरे देने वाले फर्ज से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। I love you. I'm proud of you. God bless you. एना नेल्सन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप हमें इस प्रोग्राम पर फीडबैक से आगाह कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।